Hey, hi everyone. We're gonna start with the chapter P block over there. P block is really very important from JE point of view, NEET point of view, as well as CET point of view over there. You expect at least three questions in all the competitive exams from P block coming in. Hence, it's a very important chapter, a very big chapter also. And to learn this entire chapter, you have to go in a very disciplined manner along with me itself. You have to make flowcharts along with me itself. You have to remember things along with me itself. You cannot sit on one day and remember the entire P block because it has a lot of information. I'm going to do this in bits and parts over there. So once I complete a lecture, you make your own notes, then you read the NCRT for the NEET and the JE students, and for the CT students, please read the GTB over there. Next up, please make systematic notes of whatever I say over there. Now, today's topic is going to be physical properties of group 15, 16, 17, 18, first of all. Now, let me first complete this properties and then you jot it down. Okay. Now, I first go to group 15 hydrides over there. What does hydride means? See, now there are two different questions. The group 15 elements, group 15 hydrides. I'm going to do first hydrides over there. So what are hydrides? Are basically nothing but compounds of hydrogen over there. Now there are these are the following hydrides over there. Now let me make this very clear. If you look at group 15 over there, the last element is moscovium. Group 16, the last element is livermorium. Group 17, the last element is tennessine, and the group 18, the last element is nothing but oganesson over there. Now all these four elements we do not learn anything in detail because these their properties are still yet to be known in detail over there. Hence, we will always say that the last elements of these groups, when we are learning properties and all, the last elements to be the elements of the group 6 of the period 6 over there. सबसे पहले ग्रुप 15 हाइड्रेट्स में कौन कौन से कंपाउंड देखिए पहला कंपाउंड है अमोनिया NH3 देन यू हैव फॉस्फीन ओवर देयर ठीक है then you have arsine over there ASH3 is arsine then you have SbH3 over there and then you have BH3 do not write anything right now I'm going to give you a summary page of all group 15 16 17 hydrides once I give you the summary it has these points only together but first you listen to everything once see if you've understood everything or not and then you can actually jot it down on your own also they all are sp3 hybridized sir how are they sp3 hybridized because they have 3 sigma bonds and 1 lone pair ठीक है स्ट्रक्चर देखो मैंने बनाया यहाँ पे I again repeat the compounds are ammonia, phosphine, arsine, stibine and bismuthine over there. Now bond length will increase obviously because size of the central atom will go on increasing. Reducing agent is the tendency to give away nascent hydrogen over there. Reducing agent is the tendency to give away nascent hydrogen over there. अगर bond length बड़ा होगा तो hydrogen निकलना easy हो जाएगा. बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा होगा तो हाइड्रोजन निकलना इजी हो जाएगा इसके लिए अगर आप NH3 पे देखो उसका बॉन्ड लेंथ कम है इसके लिए हाइड्रोजन निकालना डिफिकल्ट होता है और BH3 में अगर आप देखो उसमें बॉन्ड लेंथ बड़ा रहता है इसके लिए हाइड्रोजन इजीली निकल सकता है इसके लिए उसमें हाइड्रोजन इजीली अगर निकल रहा है कैन आई से इट्स रिड्यूसिंग नेचर इज मोर strong smell also increases down the group poisonous nature also increases down the group these are both facts over there क्लियर है यहाँ तक next is nothing but you can actually do one thing is along with me you can write this also and then at the end you can put a summary as I have put it in my slides also so you can copy along with me so that you can write the reasoning also over there itself if you look at bond angle I have said that it decreases मतलब NH3 और BH3 में NH3 का जो एंगल होगा वो ज्यादा रहेगा सर इसका रीजन क्या है अब देखिए यहाँ पे सबके सब एटम सबके सब मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है सबके पास सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स है सबके साइड एटम सेम है तो डिफरेंट क्या हो रहा है सर सेंट्रल एटम डिफर हो रहा है कि सेंट्रल एटम डिफर हो रहा है हेंस आई से दैट द प्रॉपर्टी दैट आई यूज इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव द सेंट्रल एटम वो क्या करेगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ खींचेगा बॉन्ड पेयर्स को अपनी तरफ खींचेगा तो उसमें रिपल्शन बढ़ेगा बॉन्ड पेयर्स में जैसे रिपल्शन बढ़ेगा वो बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा वापस बोलता हूँ मैं NH3 में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसके लिए वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ते जाएगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ते जाएगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ते जाएगा ठीक है बॉन्ड एंगल
थर्मल स्टेबिलिटी। सर थर्मल स्टेबिलिटी कैसे करते हैं? थर्मल स्टेबिलिटी को समझते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट करने पर एक मॉलिक्यूल में किस में सबसे पहले बॉन्ड्स टूटेंगे। अब लॉजिकली आप सोचो, जिसका बॉन्डिंग कम होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। जिसका बॉन्डिंग कम होगा, अमोनिया का बॉन्डिंग कम है, इसके लिए उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। अमोनिया का बॉन्डिंग कम है, इसके लिए उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगेन आई रिपीट, बॉन्डिंग एंड थर्मल स्टेबिलिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेक्स्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे देखेंगे हम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आपको देखना है तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना पड़ेगा। एन और एच, एन और एच में अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखोगे तो काफी ज्यादा होता है। इसके लिए अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बिकॉज ऑफ हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हेंस उसका बॉइलिंग पॉइंट हम देखेंगे काफी ज्यादा भी होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट है बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर कैसे देखेंगे हम? बेसिक कैरेक्टर देखेंगे, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ओवर देयर। टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ओवर देयर। टेंडेंसी टू व्हाट? डोनेट लोन पेयर ओवर देयर। अब इसको कैसे देखेंगे हम? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द सेंट्रल एटम। कहना है इसे नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इसके लिए उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। कि उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसके लिए उसका टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ज्यादा होगा। एक और तरीके से मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसके लिए उसका टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस भी ज्यादा होगा। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस भी ज्यादा होगा। इसके लिए NH3 सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, तो NH3 और PH3 में ज्यादा बेसिक नेचर का होगा NH3 ओवर देयर। सॉल्युबिलिटी को भी अगर आपको जज करना है, क्योंकि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा ज्यादा, उसके लिए उसका सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो बॉन्ड ज्यादा इजीली बना पाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब the energy required to break one mole of molecules over there into its atom, and bond dissociation enthalpy will be inversely related to bond length. बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम। एंथैल्पी मतलब एनर्जी कंटेंट। क्लियर है? अब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के लिए ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपको पहले ये समझना है कि NH3 PH3 ASH3 SbH3 एंड BiH3, ये मेरे 5 कंपाउंड्स हैं यहाँ पे। तो जैसे जैसे मैं NH3, अब देखिए पहली बात ये कि मुझे अगर बॉइलिंग पॉइंट जज करना है तो मुझे पहले आपको समझाना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स देखेंगे। दो मॉलिक्यूल्स के बीच का मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, आप ये बॉन्ड लेंथ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो इंट्रा फोर्सेस है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए इंटर फोर्सेस की जरूरत होती है। ठीक है? ये अब अमोनिया में समझो, अमोनिया और अमोनिया में कैन आई से ओवर देयर साइज छोटा है वहां पे। सब देखिए, मैं सरफेस एरिया से पहले देख रहा हूँ, सरफेस एरिया अमोनिया में छोटा रहेगा, इसके लिए उसके वैन डर वाल्स फोर्सेस कम रहेगा। PH3 का सरफेस एरिया बड़ा, तो इसके लिए उसका वैन डर वाल्स फोर्सेस और ज्यादा। ASH3 में भी और ज्यादा हो जाएगा, SbH3 में और ज्यादा, BiH3 में उससे भी ज्यादा। हेंस जैसे मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, कैन आई से दैट सरफेस एरिया इंक्रीजेस। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो वैंडरवाल्स फोर्सेस भी इंक्रीज होते जाएंगे, और कैन आई से वो ईयर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये क्लियर है यहाँ तक? अब मैं एक और चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सर कितना बढ़ता है, अब मैं ये मेजर नहीं कर सकता, वैल्यू से मैं आंसर देता हूँ। इसे मैं वैल्यू से देखा है कि मैंने ये बढ़ के PH3 से ज्यादा हो जाता है, ASH3 से भी ज्यादा होता है, लेकिन SBH3 और BIH3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब SBH3 का जो वैंडरवाल फोर्सेस का इम्पैक्ट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे ही BIH3 का भी वैंडरवाल फोर्सेस का जो इम्पैक्ट है वो NH3 के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा होगा। इसके लिए NH3 यहाँ से यहाँ पे बीच में आता है, तो ये मेरा ऑर्डर हो जाएगा। सर ऑर्डर क्या है एक बार लिख दीजिए आप यहाँ पे। सबसे पहले आएगा सबसे पहले आएगा PH3 आएगा, फिर क्या आएगा ASH3, सर फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका NH3, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा SBH3, और उसके बाद आ जाएगा BH3 सबसे ज्यादा। ठीक है, क्लियर है ये, समझ में आया आपको, ये पक्का अच्छे से समझ में आया। मैंने दो फैक्टर्स यहाँ पे लिए हैं, कौन कौन से फैक्टर्स लिए हैं, एक है सरफेस एरिया जिसकी वजह से वैंडरवाल फोर्सेस या लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस, और दूसरा मैंने लिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर मैं देखूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में मेरा सबसे ज्यादा है BIH3, फिर है SBH3, फिर है NH3, उसके बाद है ASH3 और लास्ट में है PH3 ओवर देयर। फिर इसको याद कैसे रख सकते हैं, इसको याद रखने का तरीका है बिस्नैप, BISNAP, मतलब बिस्मथ सबसे ज्यादा, बिस्नैप BISNAP, बिस्मथ सबसे ज्यादा S, और उसके बाद में N, उसके बाद में A, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा फॉस्फोरस ओवर देयर। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका मैंने अभी जस्ट बताया आपको, बिस्नैप। क्लियर है ये? ठीक है, बिस्नैप इसका तरीका है याद रखने का ये। अब इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट सर कैसे याद रखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया सबसे ज्यादा रहेगा, बिकॉज सर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों अलग अलग, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज लिक्विड टू गैस, मेल्टिंग पॉइंट इज सॉलिड टू लिक्विड होता है। लेकिन हम फैक्टर्स में डिस्टिंग्विश करके रिजल्ट नहीं लेके आ सकते, हम फैक्टर्स से जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे NH3 सबसे ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट में, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे डोमिनेट कर रहा है। उसके बाद में BIH3 सरफेस एरिया वैंडरवाल फोर्सेस। तो सर ये कैसे याद रखेंगे, ये याद रखेंगे हम N बिसैप, ये कैसे याद रखेंगे हम N बिसैप। ठीक है, अब एक बार सबके सब प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमने किया बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप क्या होगा, बढ़ेगा, समझाइए आप लोग। बॉन्ड लेंथ के बाद हमने समझा रिड्यूसिंग नेचर, क्योंकि साइज बढ़ते जाएगा इसके लिए हाइड्रोजन निकालना इजी होते जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन निकालना इजी होते जा रहा है इसके लिए हम बोल रहे हैं रिड्यूसिंग नेचर भी बढ़ते जाएगा। फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल, पॉइजनस नेचर, दोनों डाउन द ग्रुप बढ़ते जाता है। ठीक है, अब डिक्रीजेस में क्या क्या आ जाते हैं, डिक्रीजेस में सबसे पहले आ जाएगा बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उसके लिए उसको ब्रेक करने के लिए उतना कम आपको एनर्जी लगेगा। ये क्लियर है? उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो आता है वहां पे वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो गया। फिर हम बेसिक नेचर की बात कर सकते हैं। बेसिक नेचर सर आप कैसे लिख रहे हो, बेसिक नेचर में लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से सेंट्रल एटम को, जिसका साइज छोटा होगा, सेंट्रल एटम का साइज अगर छोटा रहा तो हाइड्रोजन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। इसके लिए अमोनिया इज मोस्ट बेसिक ओवर देयर, अमोनिया इज व्हाट, मोस्ट बेसिक ओवर देयर। हमने किससे देखा ये, हमने देखा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। बॉन्ड एंगल देखा हमने, बॉन्ड एंगल से कैसे देखा, बॉन्ड एंगल हमने देखा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव द सेंट्रल एटम। ठीक है, मोर इज द बॉन्ड एंगल। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब बॉन्ड्स ब्रेक करने को एनर्जी कितना लगेगा, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा उसको कम एनर्जी लगेगा।
थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन, एंथैल्पी सेम ही चीज हो जाती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओवर देयर. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया का सबसे ज्यादा होगा. जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी भी सबसे ज्यादा. उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखा हमने, जैसे हम जाते हैं NH3 से BiH3 की तरफ, NH3 से BiH3 की तरफ जैसे जैसे जाते हैं हम देखते हैं कि बेसिकली BiH3 का वैन डर वाल्स फोर्सेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, इसके लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा. उसके बाद SbH3. सर फिर NH3 क्यों थोड़ा आगे आगे, NH3 इसके आगे आगे क्योंकि उसमें होता है क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन. तो बॉइलिंग पॉइंट में वो सबसे आगे नहीं हो पाता है, लेकिन वो बीच में आ जाता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में सबसे आगे हो जाता है. इसका क्लियर डिस्टिंग्विश क्यों ऐसा होता है वो हम एक्चुअली बोल सकते हैं. ठीक है, ये आपका ग्रुप 15 हाइड्रेट हो जाएगा. तो आपके पी ब्लॉक के नोट्स के फर्स्ट पेज पे बहुत अच्छे से ग्रुप 15 हाइड्राइड आना चाहिए. ठीक है, अब एक फ्रेश पेज ले लीजिए, उसमें आ जाएगा ग्रुप 16 हाइड्राइड्स. ओके, उसके पहले और थोड़े पॉइंट ग्रुप 15 हाइड्राइड्स के लिए. एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा, N2O3 की P2O3 का. अब सर ये कैसे देखते हैं, एसिडिक नेचर को अगर हमें देखना है, देखिए दोनों ट्राइऑक्साइड्स है N2O3 और P2O3. ठीक है, N2O3 और P2O3 दोनों ट्राइऑक्साइड्स है, तो ऐसे वक्त पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रायोरिटी देते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसका ज्यादा उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा. अब नेक्स्ट देखिए, दोनों के दोनों नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, दोनों के दोनों क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, N2O5 और N2O3. दोनों के दोनों जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को देखते हैं. मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, more electron deficient the compound is, more electron deficient over there, more tendency to accept over there, more tendency to accept मतलब वो ज्यादा एसिडिक है. वापस रिपीट करता हूँ, more the oxidation number over there, ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ज्यादा टेंडेंसी टू एक्सेप्ट होगा. ज्यादा टेंडेंसी टू एक्सेप्ट मतलब वो एक अच्छा एसिड होगा, उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा. बहुत अच्छा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका लुईस बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, NF3 NiF3. ठीक है, मैं वापस रिपीट देता हूँ, लुईस बेस स्ट्रेंथ अगर आपको देखना है तो आपको पहले देखिए कैसे इसको एकदम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. NF3 NF और यहाँ पे लोन पे NiI और यहाँ पे लोन पे, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा एट द सेंट्रल एटम, वो ज्यादा अच्छा लुईस बेस होगा. इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम. ओके, दोनों का साइज तो सेम ही है सर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन. आप साइज के हिसाब से आप नहीं कर सकते हो, तो सर कैसे करोगे आप. अब मैं साइड एटम को देखूंगा क्योंकि साइड एटम अलग अलग है. जब साइड एटम अलग अलग है तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव देखो. फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके लिए वो अपनी तरफ खींचेगा. जब वो फ्लोरीन 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 जब अपनी तरफ खींच रहे हैं, 3 फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेंगे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन वहां पे खींचेगा, तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो कम हो जाएगा. अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो नाइट्रोजन का डोनेटिंग पावर भी कम हो जाएगा. Hence NF3 is least basic over there. वापिस रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए आप. मैंने पहले बनाया नाइट्रोजन NF3 बना दिया मैंने, और ये लोन पेयर बना दिया, और ये बनाया मैंने NI3. सर ये कैसे देखना है अब देखना है हमें सेंट्रल एटम को. जो सेंट्रल एटम ज्यादा क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा होगा, वो अच्छा बेस होगा. बेटर डोनेटिंग पावर, बेटर लुईस बेस. अब सर सेंट्रल एटम को देख सकते हैं, साइज को, हाँ साइज को देख सकते थे अगर अलग अलग होता तो. यहाँ पे तो साइज सेम ही है, तो सर क्या देखेंगे हम देखेंगे अब यहाँ पे फ्लोरीन है और वहां पे आयोडीन है, साइड एटम्स अलग अलग. फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके लिए वो अपनी तरफ खींचता है. क्योंकि वो अपनी तरफ खींचेगा तो कैन आई से वो देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन विल डिक्रीज, hence its electron donating power will also decrease, hence it's a weaker Lewis base.
चलिए NI3 के बारे में, आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा होगा, इसके लिए वो अच्छा लुईस बेस भी होगा। समझा आपको? ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। NF3 NI3 में कौन ज्यादा बेसिक होगा? वैसे ही NH3 और NH3 और NF3 सिंपल होगा। आप यहाँ पे भी आपको जज करना, वापस आपको क्या देखना पड़ेगा, सेंट्रल एटम तो नहीं देख पाओगे क्योंकि दोनों सेम साइज के हैं, तो साइड एटम्स को देखो। अब कौन ज्यादा खींचेगा, कहना है फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनफैक्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम हो जाएगा, इसके लिए वो वीक बेस हो जाएगा। हेंस NH3 इज मोर बेसिक देन NF3। ब्यूटीफुल पॉइंट्स ओवर देयर। क्लियर है ये ग्रुप 15 हाइड्राइड्स हुए हैं। वैसे ही हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 15 एलिमेंट्स के भी करने हैं। अभी मैंने हाइड्राइड्स किया, फिर मैं एलिमेंट्स पे जाऊंगा क्योंकि हाइड्राइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में जाता हूँ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स पे। ग्रुप 16 हाइड्राइड्स में देखिए क्या क्या है, H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 लोन पेयर्स। एकदम सिंपल है ये, यहाँ तक क्लियर है। अब एक फ्रेश पेज पे लिखना प्लीज, ग्रुप 16 हाइड्राइड्स एकदम फ्रेश पेज पे अच्छे से सिस्टमैटिकली लिखते जाना। अब इसमें आ जाएगा 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 लोन पेयर्स। अब इंक्रीजेस में क्या क्या है, इंक्रीजेस में बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज बढ़ जाएगा, इसके लिए कहना है बॉन्ड लेंथ विल आल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर सर कैसे जज करेंगे? एसिडिक कैरेक्टर जज करेंगे हम टेंडेंसी टू गिव अवे H+, रिड्यूसिंग एजेंट टेंडेंसी टू गिव अवे नेसेंट हाइड्रोजन। दोनों डायरेक्टली डिपेंड करेंगे बॉन्ड लेंथ पे। एसिडिक नेचर इज टेंडेंसी टू गिव अवे H+ in aqueous solutions and reducing character is tendency to give a nascent hydrogen। दोनों के डेफिनेशन थोड़े थोड़े अलग है, लेकिन दोनों के दोनों डायरेक्टली डिपेंड करेंगे बॉन्ड लेंथ पे। जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा वो नेसेंट हाइड्रोजन इजीली दे देगा। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? H2PO। सबसे अच्छा एसिडिक नेचर किसका होगा? H2PO। अब वापस बॉन्ड एंगल के बारे में बात करना है। बॉन्ड एंगल में हमें H2O और H2S के बारे में बात करेंगे पहले। H2O और H2S में अगर आप देखोगे दोनों का वाइब्रेशन सेम है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, सिर्फ सेंट्रल एटम अलग अलग है। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, इसके लिए रिपल्शन बढ़ेगा, इसके लिए कहना है इसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। समझा? बॉन्ड एंगल, इसके लिए H2O का बॉन्ड एंगल और H2S के बॉन्ड एंगल में H2O का ज्यादा रहेगा आपका। ये क्लियर है आपको? नेक्स्ट थर्मल स्टेबिलिटी देखते हैं। मैंने आपको बोला थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, दोनों के दोनों इनवर्सली रिलेटेड विद बॉन्ड लेंथ। थर्मल स्टेबिलिटी उसका ज्यादा होगा जिसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, क्योंकि H2O का बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, इसके लिए उसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, मतलब उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक है। ये नेक्स्ट मैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करता हूँ यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ कौन कौन से हाइड्राइड्स है। सबसे पहले है H2O, फिर है मेरा H2S, फिर H2SE, H2Te एंड H2PO। ठीक है। अब यहाँ पे सर क्या देखोगे आप? पहले मैं बोल रहा हूँ बॉन्ड लेंथ को नहीं देखना आपको। बॉन्ड लेंथ को इसलिए नहीं देखना कि बॉन्ड लेंथ इज इंट्रा फोर्सेज ओवर देयर। इसके लिए आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली इंटर फोर्सेस को। इंटर फोर्सेस कौन से होते हैं? लंडन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, वो सब फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले, जैसे मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, कैन आई से सेंट्रल एटम का साइज बढ़ते जा रहा है, इसके लिए कैन आई से सरफेस एरिया बढ़ेगा, इसके लिए कैन आई से ओवर देयर वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे,
एंड कैन आई से बिकॉज ऑफ दैट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो इसके लिए ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। लेकिन H2O में क्या होगा बताओ आप? H2O में हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। तो बढ़ के वो कहाँ तक जाता है, वैल्यू से पता चला है वो बढ़ के वो जाता है सबसे एंड में, मतलब H2O सबसे ज्यादा होता है। H2O सबसे ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, फिर H2PO, फिर H2PE, फिर H2Se और फिर H2S। क्लियर है ये? ओके। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एक लिक्विड अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है मतलब वो लिक्विड टू गैस आराम से कन्वर्ट हो सकता है। एक लिक्विड का अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ मतलब वो कम टेम्परेचर पे लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो एक इजीली कन्वर्टेबल लिक्विड टू गैस है, मतलब वो एक अच्छा वॉलेटाइल लिक्विड है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वॉलेटिलिटी ज्यादा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वॉलेटिलिटी ज्यादा। बहुत बढ़िया पॉइंट है, समझा आपको? अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा किस में, गैस में। आप मुझे बताओ H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, इसके लिए वो लीस्ट वॉलेटाइल लिक्विड होगा कि मोस्ट वॉलेटाइल लिक्विड होगा? मोस्ट बॉइलिंग पॉइंट मतलब लीस्ट वॉलेटाइल लिक्विड। तो सर मोस्ट वॉलेटाइल लिक्विड क्या होगा? मोस्ट वॉलेटाइल लिक्विड हो जाएगा H2S। क्लियर है? ये देखिए, और ये स्लाइड पे वॉलेटिलिटी भी लिखा हुआ है। वॉलेटिलिटी इज इनवर्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। प्लीज ऐड अ पॉइंट ओवर देयर। A liquid which has less boiling point means it can easily convert from the liquid state to the gaseous state, which means it is a more volatile liquid. ये आपका ग्रुप 16 हाइड्राइड्स भी हो गया है। प्लीज इसको एक प्रॉपर्ली लिख दीजिए एक पेज के ऊपर। अब एक फ्रेश पेज लीजिए, उस पर ग्रुप 17 हाइड्राइड्स लिख दीजिए प्लीज। ग्रुप 17 हाइड्राइड्स में हैलोजन एसिड आते हैं। दो टाइप के एसिड्स होते हैं यहाँ पे, एक हैलोजन एसिड्स होते हैं और दूसरे होते हैं हैलोजन ऑक्सो एसिड्स। सर हैलोजन ऑक्सो एसिड मतलब जिसमें ऑक्सीजन आ जाता है, इसको सिर्फ हम हैलो एसिड्स बोलते हैं, हैलोजन एसिड्स बोलते हैं। दूसरा ऑक्सीजन, हैलोजन्स ऑक्सो एसिड में ऑक्सीजन भी आना चाहिए, इसमें ये एसिड्स है लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए सिर्फ इसको हैलोजन एसिड्स बोलते हैं हम। अब जाते एक एक करके पॉइंट्स पे। इंक्रीजेस में क्या क्या है देखिए, सबसे पहला है बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज। थिंक अबाउट इट। यस, बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, बराबर है ये। सर क्यों बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा? क्योंकि साइज बढ़ते जा रहा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का, इसलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा। एसिडिक नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, अब मैंने वापस बता रहा हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग नेचर कैसे दिखते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब टेंडेंसी टू गिव अवे H+, रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी टू गिव अवे नेशनल हाइड्रोजन। दोनों के दोनों डायरेक्टली डिपेंड करते हैं बॉन्ड लेंथ के ऊपर। दोनों के दोनों डायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं? बॉन्ड लेंथ के ऊपर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, डिक्रीजेस में परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली H और F का आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस भी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर भी ज्यादा। तो HF का परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। थर्मल स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, दोनों के दोनों किससे इनवर्सली रिलेटेड है बताइए अभी? बॉन्ड लेंथ से। तो HF विल बी द मोस्ट थर्मली स्टेबल। ठीक है, अब इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। ये बॉइलिंग पॉइंट तो कहना है इसे वो यार, यहाँ से जैसे जैसे मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, क्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, कहना है इसे सरफेस एरिया बढ़ते आ रहा है। सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, कहना है इसे वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा।
वैन वॉल फोर्स बढ़ेगा तो कैन आई से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, शाबाश। हेंस कैन आई से ओवर हियर, ये मेरा ऑर्डर हो जाएगा। सबसे पहले इतना क्लियर है, क्लियर है। अब फ्लोरीन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसके लिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा बढ़ के यहाँ तक आया था। जो वहां तक क्यों गया, ये एक्सपेरिमेंटली देखा है कि सबसे ज्यादा हो जाता है। तो HCl में भी हम बोलोगे थोड़ा सा हाइड्रोजन, HCl में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं काउंट करते क्योंकि इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता है। तो सर ऑर्डर क्या हो गया, HF सबसे ज्यादा, फिर HI, फिर HBr और फिर HCl। ठीक है, मैं वापस लिख देता हूँ। ऑर्डर है HF सबसे ज्यादा, फिर HI और फिर HBr और लास्ट में क्या आएगा, HCl। HCl सबसे लीस्ट हो गया। क्लियर है आपको ये कौन सा ऑर्डर है सर, ये ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का। सर मेल्टिंग पॉइंट का भी सेम ही होता है, लेकिन HF और HI में स्विच हो जाता है। HI सबसे ज्यादा, फिर HF, फिर HBr और फिर HCl। मैंने पहले भी बोला था कि कुछ इतना मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर्स को, लेकिन मैं ऑर्डर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्यों ऐसा है। HI ज्यादा इसके लिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर वैन डर वाल्स फोर्सेस है। HF उसके बाद में आता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। आप सिंपल एक काम कर सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट याद रख सकते हो और फिर आप एक याद रख सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट से मेल्टिंग पॉइंट जाना है तो HF और HI में स्विच हो जाता है। ये आपका ग्रुप 17 हो गया। क्या कहते हैं, ग्रुप 17 हो गया हाइड्राइड्स भी। ठीक है, एक बार हम ध्यान से कर लेते क्या क्या किया। देखिए ग्रुप 15 सबसे पहले हमने हाइड्राइड्स किया था। कौन कौन से, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्साइन, स्टेबाइन, बिस्मुथीन। बॉन्डिंग बढ़ते जाएगा, समझ में आया, क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज बढ़ते जा रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट भी बढ़ते जाएगा क्योंकि टेंडेंसी टू गिव अवे नेचर हाइड्रोजन बढ़ते जाएगा। स्ट्रॉन्ग स्मेल, पॉइजनस नेचर, ये तो क्या कहते हैं फैक्चुअली है। बॉन्ड एंगल कम होते जाएगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम, लेस द बॉन्ड एंगल। थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, मैंने दोनों बोला था किस पर डिपेंड करता है आपका, डिपेंड करता है आपका इनवर्सली टू बॉन्ड लेंथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। बेसिक नेचर वापस रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक नेचर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जज करते हैं। जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, वो बहुत इजीली डोनेट कर पाएगा। जिसका साइज छोटा होगा उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, जिसका साइज छोटा उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, जिसका साइज छोटा उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। सोचिए आप, एंड अमोनिया का साइज छोटा है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसके लिए उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा है या H प्लस एक्सेप्टिंग पावर ज्यादा है। NH3 can form most easily ammonium ion. Give reason. Because its basic nature is the most, because of its high electron density on the central atom. Boiling point, the order is nothing but BISNAP. Melting point, the order is N-BISAP. एसिडिक नेचर N2O3 P2O3, किसका ज्यादा होगा N2O3 P2O3 में। N2O3 और P2O3 में इलेक्ट्रोनेगेटिव से जज करोगे, N2O3 और P2O3 में ज्यादा हो जाएगा N2O3 का, क्योंकि N2O3 में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है। N2O3 N2O5 में किसका ज्यादा होगा, N2O5 का, क्योंकि मोर ऑक्सीडेशन नंबर, मोर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ओवर देयर। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ज्यादा होगा तो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NF3 और Ni3 में कौन ज्यादा बेसिक होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा सेंट्रल एटम पे, उसका बेसिक नेचर भी ज्यादा। ग्रुप 16 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लास्ट टाइम के नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। थर्मल स्टेबिलिटी ओवर देयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पे। तो ग्रुप 16 हाइड्राइड्स में H2O, H2S, H2SE, H2D, H2PO अगर मैं देखूं, सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बॉन्ड लेंथ अगर मैं देखूं, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका है, नीचे वाले का सबसे ज्यादा होगा, मतलब H2PO का ज्यादा होगा। H2 एसिडिक नेचर भी उसका ही ज्यादा होगा। रिड्यूसिंग एजेंट भी सबसे अच्छा H2PO ही होगा।
ओके, कौन सबसे अच्छा, किसका सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा? H2O की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव द सेंट्रल एटम मोर द बॉन्ड एंगल की लेस द बॉन्ड एंगल, लेस द बॉन्ड एंगल नहीं होगा, मोर द बॉन्ड एंगल होगा. सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव द सेंट्रल एटम मोर द बॉन्ड एंगल. फिर थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ. बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा, H2O सबसे आगे क्यों चलेगा? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका वोलेटिलिटी कम. क्लियर है ये? नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रुप 17 हाइड्रेट्स. ग्रुप 17 हाइड्रेट्स में सबके पास कैनाई से ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा. यहाँ पे भी प्लीज लिख देना sp3 हाइब्रिडाइज्ड ओवर देयर. बॉन्डिंग एसिडिक नेचर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर सब बढ़ते आएंगे बिकॉज साइज बढ़ते रहा है सेंट्रल एटम का. परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा HF का होगा. थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किससे रिलेटेड है? इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्डिंग. बॉइलिंग पॉइंट HF का सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर HI है, और मेल्टिंग पॉइंट में वो दोनों स्विच हो जाता है. इतना हम ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्यों ऐसा होता है, हमें याद रखना है ये बेसिकली. ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट जाऊंगा एलिमेंट्स के ऊपर एक एक करके. पहले अच्छे से याद करो ग्रुप 15 16 17. यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ, ग्रुप 15 16 17 हाइड्रेट्स. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं एलिमेंट्स, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, वीडियो में मैं एलिमेंट्स ले लूंगा. लेकिन पहले ये आप अच्छे से याद करो, फिर ही नेक्स्ट वीडियो देखो. ठीक है, थैंक यू सो मच.